Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar, and today I am discussing this Doctrine of Essential Religious Practice in our series of issue-based learning. I am sure with these changes in CLAT 2020, you are aware that now the current affair has to be taken in this format. Let's start to talk about this issue called Doctrine of Essential Religious Practice. This is an issue referring to Subliminal Case. I am sure everyone is aware about Subliminal Case. There was a judgment in the September month, September 2018. Okay, आपको इस केस का नाम बताना है जिसका ये जजमेंट आया था. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, जजमेंट ये आया था that this temple, that is Lord Ayyappa's temple at Sabrimala, was not allowing women in the age group of 10 to 50, and the court said it is illegal and unconstitutional. Court went to the level and said that this was 4:1 judgment. ठीक है, there was one dissenting judge. Okay, and Indu Malhotra ji was dissenting here. So court इस हद तक पहुंची. कोर्ट ने बोला that not allowing women to the temple will be termed as, you can say, untouchability, और इसकी वजह से इसको तो अलाउ करना चाहिए. ठीक है, celibacy of God, ठीक है, अयप्पा, and exclusion of women, ठीक है, is not an essential religious practice. ये कोर्ट ने रेफर किया. ठीक है, इंदु मल्होत्रा जी ने बोला that this is an age old practice. ठीक है, and that's why I think it requires deeper understanding and I think it should continue. ऐसा इंदु मल्होत्रा जी ने बोला था. But something very important point is here is this, that celibate nature of deity and exclusion of women, ठीक है, of a particular age, which is menstruating age, was not essential religious practice. Now what is the meaning of essential religious practice? ऐसी कोई religious practice जो बरसों से चली आ रही है, which is a very important part of that religion. It is not based on some superstition. ठीक है, it is not illogical, but there is some relationship, some reasons, ठीक है, some intelligent reason available, then it is protected under article number 25(1). But सवाल ये पैदा होता है कि can court decide on this particular front? बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने ये आइडिया डेवलप किया था कि हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उन केसेस के बारे में बात करते हैं. पर उसके पहले ये जो डिसीजन आया, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन लगाया गया. रिव्यू पिटीशन का जजमेंट आया कि भाई सबरीमाला इश्यू को हमें लार्जर बेंच को लगाना चाहिए, 7 जज बेंच को लगाना चाहिए. ठीक है, जब इस केस को हायर बेंच को रेफर किया गया तो कोर्ट ने टोटल, यू कैन से, 7 सवाल बनाए. ठीक है, दिस इंक्लूड वेदर कोर्ट कैन प्रोब that a practice is essential to a religion, or should the question be left to the respective religious head. That's a big question. ठीक है, कि कोर्ट इस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस को डिफाइन कर सकती है या उस रिलीजन के जो हेड होंगे वो डिफाइन करेंगे. Should essential religious practice be afforded constitutional protection? This is a big thing. सबसे पहली बात तो essential religious practice आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अगर वो आइडेंटिफाई हो गया, can Constitution protect it? That's a big question. ठीक है, and another important question which was raised, that to what permissible extent this judicial recognition of a court should give to PIL filed by the people who do not belong to this particular religion, जो उस धर्म के नहीं है. ठीक है, उनको किस हद तक का परमिशन दिया जाए कि वो PIL फाइल कर सके. दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन थे, उसमें से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं. ठीक है, सो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज दिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये कहां से आया? दिस डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी was invented by a 7-judge bench of a Supreme Court in a very famous case called Shirur Mutt case in 1954. ठीक है, केस का नाम बहुत बड़ा है. The Commissioner Hindu Religious Endowment Madras versus Shri, you can say, Lakshmindra Tirtha Swamier of Shri Shirur Mutt. The court held in this particular case was the term religion will cover all rituals and practices which are integral to the religion, and took upon itself to determine the essentiality of that religious practice. कोर्ट ने बताया कि रिलीजन का जब हम नाम देते, धर्म बोलते, सो धर्म इंक्लूड्स ऑल रिचुअल्स एंड दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन. दैट इज वैलिड वन. पर अब
कौन सी प्रैक्टिस को हम एसेंशियल बोलेंगे या कौन सी प्रैक्टिस को हम एसेंशियल नहीं बोलेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिसाइड किया. इन अ वेरियस प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग they have held that practice that is essentially religious has to be definitely protected under law. ठीक है. Now what is this essential religious practice? Once again I am repeating that idea. Essential religious practice ऐसी practice जो काफी बरसों से चली आ रही है या फिर religion के you can say development में, evolution में कहीं बीच में किसी ने गलत तरीके से उसको सुपरस्टिशन के द्वारा अगर लगा दिया कि ये प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है तो इसको रोक देना चाहिए. दिस इज व्हाट कोर्ट सेड. ठीक है. वेरियस स्कॉलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैव आर्ग्यूड दैट द एसेंशियलिटी डॉक्ट्राइन, ठीक है, हैज टेंडेड टू लीड द कोर्ट इनटू एन एरिया दैट इज beyond its competency and given judges the power to decide purely religious question. और इसीलिए सवाल यह पैदा हुआ that this essential religious practice, ठीक है, how this essential religious practice has squared up against religious freedom. What do I mean by squared up against religious freedom? How it is against, how it is in opposition to religious freedom. Okay, एक तरफ कोर्ट बोल रही है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से हम इस चीज को डिस्कार्ड करते हैं, और एक तरफ कैन से कोर्ट बोलती है या गवर्नमेंट बोलती है या हमारा नेशन बोलता है कि लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए. तो इन दोनों का कंफ्लिक्ट हो रहा है. तो ये दोनों के कंफ्लिक्ट के अंदर कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि कोर्ट के पास तो कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है, और प्योरली रिलीजियस मैटर को कोर्ट ऐसे कैसे डिसाइड कर सकती है. इसीलिए ये सबरीमाला वाला केस इन्होंने वी कैन से 7 जज बेंच को भेज दिया. ठीक है. सो द बिग क्वेश्चन नाउ इज द डिबेट इज हैपनिंग बिटवीन डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम. Religious freedom is really very important. It is a guarantee of freedom to practice one's belief. ठीक है. It will be termed as it is inward association of an individual to the God. भगवान के साथ आपका एक इंटरनल कनेक्शन है, और वो कनेक्शन के लिए अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है जो धर्म में बताई गई है आप करेंगे, अच्छी बात है. ठीक है, उसका प्रोटेक्शन हम करेंगे. दिस इज व्हाट द कोर्ट सेज. ओके, एंड द सुप्रीम कोर्ट इन अ वेरी फेमस केस कॉल्ड रतिलाल पानचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दे एक्नॉलेज्ड that every person has a fundamental right to entertain such religious belief as may be approved by his or her own judgment or conscience. This becomes a bigger idea. अगर उस इंडिविजुअल बंदे को लगता है कि उसको ये धर्म की प्रैक्टिस के लिए, है ना, अपना जजमेंट लगाना है कि ये सही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, है ना, मूर्ति की पूजा करना, ठीक है, दैट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, आस्था का विषय है. ठीक है. आप कोई मंदिर, कोई कैन से मूर्ति को आप बहुत रिस्पेक्ट से उसके ऊपर आप माथा टेकते हैं. ठीक है. नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट इज लेफ्ट टू अ जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. उसके ऊपर कोई और बात हो नहीं सकती. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने भी इस बात को बोला था कि भाई इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए. बट स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट एसेंशियलिटी टेस्ट, ठीक है, impinges on this autonomy, and essential practice test is antithetical to the individualistic conception of the right. ठीक है. ये अगर आप बोल देते हैं कि ये essential part है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, नॉट द इंडिविजुअल, तो प्रॉब्लम है. ठीक है. ऐसा बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली दिस इज एंटीथेटिकल, क्योंकि धर्म एक इंडिविजुअल पर्सन की बात है. वो धर्म को जिस तरीके से करना चाहे वो कर सकता है. पर सवाल ये पैदा होता है कि जब धर्म की बात, ठीक है, आपके इंडिविजुअल पॉइंट से उठकर, ठीक है, इट इज नाउ इंपैक्टिंग द सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी के मॉरल्स को इंपैक्ट करता है, सोसाइटी की हेल्थ को इंपैक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर को इंपैक्ट करता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग चेंज. देन देयर इज समवन like court which is needed to find out whether this is an essential practice or not, and that's why this is a very critical aspect. So as a result of this, over the years court have been very inconsistent on this kind of question. ठीक है. In certain cases they relied on a religious text to determine essentiality. ठीक है. कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने किताबों में देखा कि गीता में लिखा है कि नहीं, ठीक है, उपनिषद में लिखा है कि नहीं, कुरान में लिखा है कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि नहीं. ठीक है. और कुछ कुछ जगह पे दे हैव गॉन थ्रू एम्पेरिकल बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स. दैट मीन्स
जो फॉलोअर है वो ज्यादातर किस तरीके से, उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने लिया, ठीक है. सो दिस इज रियली अ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग स्टैंड बाय द कोर्ट सो फार, ठीक है. एक्सपर्ट्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट that the idea of providing constitutional protection only to those elements of religion which court consider essential is a problematic. कि अगर कोर्ट मानती है कि हम उसी चीज को प्रोटेक्ट करेंगे जिसको हम मानते हैं कि एसेंशियल है, हम मतलब कोर्ट मानती है एसेंशियल है, वो प्रॉब्लमेटिक है, because it assumes that one element of practice of religion is independent of the other element of the practice. ठीक है, शायद ऐसा ना हो, दे आर डिपेंडेंट, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज. कल उठ के कोर्ट बोले कि भगवान की पूजा के अंदर जो पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है, और पानी की कमी है तो पानी कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा. सो व्हाइल द एसेंशियलिटी टेस्ट privileges certain practices over others, it is in fact all practices taken together that constitutes a religion. कोई इंडिविजुअल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज ABC, बट इट इज इन ऑल totality that is very important. This is what the various experts are saying. और इसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई इसी बात की हो रही है that essential religious practice, ठीक है, and religious freedom, how they are going against with each other, ठीक है. Now, what are the grounds on which this particular judgment was challenged? The petitioner argued that the court erroneously concluded that the ban is based on the age of women. In fact, it is based on the celibate nature of Lord Ayyappa, which is very distinct to Subrimala. Lord Ayyappa ने celibacy का प्रण लिया था, और इस celibacy प्रण के लिए it is really important that women should not be there in front of the God. ऐसा petitioners ने बोला. Petitioner also argued that devotees of Ayyappas were not heard by the court. Rather, verdict was delivered in a play filed by NGO that has not professed belief in the deity. तो एक NGO ने डिमांड करी थी और कोर्ट ने उनकी बात सुन ली. कोर्ट ने उनके डिवोटी की बात नहीं सुनी. ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. कोर्ट हैड हेल्ड दैट डिवोटीज ऑफ अयप्पा डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड दैट इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इट्स यूनिक कस्टम. कोर्ट ने इसीलिए बात नहीं ली थी क्योंकि कोर्ट ने बोला दैट द डिवोटीज ऑफ अयप्पा दे आर नॉट अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन. वो कोई अलग धर्म का ग्रुप नहीं है, वो सेम हिंदू धर्म की बात हो रही है. और इसकी वजह से है ना, उनको कोई यूनिक कस्टम अगर उनका हो विच कैन नॉट बी टर्म एज अ कस्टम ऑफ हिंदू पीपल. बट पिटिशनर ने यह बोला दैट यूनिकनेस ऑफ सबरीमाला टेम्पल एंड इट्स हिस्ट्री इज इनफ टू ग्रांट दिस डिनोमिनेशनल स्टेटस टू अयप्पा डिवोटी. उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अयप्पा डिवोटी है ना, वो अलग है, क्योंकि सबरीमाला टेम्पल खुद और उसकी हिस्ट्री ही तो बताती है कि हम अलग हैं. The petitioner also claimed that spiritual organization, a common bond and existence of unique practices which flow from its belief are the three conditions. ठीक है, that is talking about denominational status. एक तो सबरीमाला जो है वो spiritual organization है, ठीक है, people have a common bond, ठीक है, and there is a unique practice. इतना काफी है, ऐसा petitioner का बोलना है, ठीक है. There was a dissenting judgment provided by Rohinton Nariman and D.Y. Chandrachud. ठीक है, they have delivered a dissenting judgment here. They were part of constitution bench that delivered the original majority judgment, which was 4:1. ये 3:1 that was petition review petition वाला. They held that judgment of 5-judge constitution bench was the last word on the interpretation of the constitution. उन्होंने बोला this was the last word, ये तो खत्म हो गया, यहां तो बात खत्म हो गई. Once the constitution bench has laid down the law, both legislature and executive were bound to comply, and that's a rule of law, and there is no occasion for the court to recalibrate judicial decision on the legal issues. ठीक है, Justice Nariman explained that busybodies, religious fanatics, cranks and persons with vested interest will be turned down by the court at the threshold itself, and that for the judges the holy book is the constitution. ठीक है, ऐसा जस्टिस नरीमान इस लेवल तक जाके बात करी उन्होंने. तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका बाद क्या आएगा, वो तो अभी थोड़े समय में देखेंगे.
तो हम एक नया सवाल यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि ये रिव्यू पिटीशन होता क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम्स अ लॉ ऑफ लैंड विच इज एज वेरी क्लियरली मेंशन इन आर्टिकल नंबर 141। ठीक है, हाउएवर आर्टिकल नंबर 137 gives सुप्रीम कोर्ट पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट। ठीक है, और द ऑर्डर। ठीक है, सो व्हाट आर द ग्राउंड्स अवेलेबल फॉर द रिव्यू? ये रहा पहला, देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। ठीक है, कोई नई जानकारी आई, ठीक है, तो बराबर है। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर इज अ मिस्टेक और एरर विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, दिख रहा है, दैट इज ऑब्वियसली कोई गलती हो गई है। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, और इन अ सब्सिक्वेंट रूलिंग द कोर्ट स्पेसिफाइड एनी सफिशिएंट रीजन मींस अ रीजन दैट इज एनालॉगस टू अर्लियर टू ग्राउंड, तो इसके बेसिस के ऊपर दे सकते हैं। इन अ वेरी फेमस केस called Union of India versus Sandur Manganese and Iron Ore Limited in 2013, court held that the review is by no means an appeal in disguise. Review does not mean an appeal in disguise whereby an erroneous decision is reheard and corrected, but lies only for the patent error. कोई बहुत पेटेंट एरर मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण एरर है। ठीक है, पेटेंट एरर का मतलब है ये बहुत क्रूशियल एरर होनी चाहिए। Further, it is not necessary that only parties to a case can seek a review. This is very important. ठीक है, as per the Civil Procedure Code, Supreme Court rules, any person aggrieved by the ruling can seek a review. This is very important. ठीक है, and also there is another review petition available which is called curative petition. This has developed through Rupa Hura versus Ashok Hura case, जहाँ पे ये बोला गया था that in case there is a failure of review petition, petitioner can still go for curative petition. That's a last resort. ठीक है, तो ये है आपके सामने पूरे रिव्यू के बारे में बातें। बट हमने यहाँ पे सीखा क्या? हमने सीखा दैट व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और रिलीजियस फ्रीडम, इन दोनों के बीच में क्या ग्राउंड के ऊपर इनसे लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। सो आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू, आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड डू नॉट मिस आउट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।